eTeacher is my YouTube channel, so subscribe my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 10 एसएसटी जनरल इंग्लिश क्लास सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन जारी है। आज का जो यूनिट है यूनिट नंबर 10 है जेंडर इन इक्वलिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। चलो लेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज जेंडर इन इक्वलिटी मीन? डिनाइंग और ग्रांटिंग राइट्स बेस्ड ऑन जेंडर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ वुमेन? मोर देन 50%। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन डू? हैम्पर सोशियो इकोनॉमिक एंड एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज बेडली नेग्लेक्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ? वुमेन। क्वेश्चन नंबर 5 इन विच फील्ड्स आर वुमेन स्पेशली नेग्लेक्टेड? एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 6 नियरेस्ट मीनिंग हैम्पर। हैम्पर मीन्स रुकावट डालना यानी हैंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी? कल्चरल नॉर्म्स एंड पार्शियल माइंडसेट। क्वेश्चन नंबर 8 नियरेस्ट मीनिंग पार्शियल, बाप या मर्द की हुक्मरानी यानी मेल डोमिनेटेड। नंबर 9 हाउ आर मेल्स एंड फीमेल्स जनरली कंसीडर्ड? मेल्स पावरफुल, फीमेल सेंसिटिव और वीक। Number 10 how are women supposed to be treated? As submissive to men and viewed as property. Question number 11 nearest meaning submissive यानी फरमानबरदार, मती, और इंग्लिश में इसका मतलब क्या है? obedient. Number 12 nearest meaning sheerly. sheerly means खालिसतन, बिल्कुल यानी purely. Number 13 how are men and women often seen due to social trends as two very different species? Question number 14 what are men and women expected to do according to these trends? Always stay on separate paths. Number 15 where is gender inequality more clearly seen? In schooling, especially higher education. Number 16 nearest meaning manifest. Manifest means ज़ाहिर होना, आया होना यानी appear. 17 why may a family in Pakistan consider it useless to educate girls? Because girls are supposed to get married and take responsibilities of housekeeping and babysitting. Question number 18 nearest meaning drop out. drop out का मतलब है तालीम अधूरी छोड़ देना यानी quit. Number 19 according to the Ministry of Women Development 2007 report what percentage of women attend a bachelor degree? 5%. Number 20 according to the same report what percentage of women achieved a master degree? 1.4%. 21 according to the World Economic Forum 2020 report what percentage does Pakistan still stand at in bridging the educational gender gap? 20%. 22 what percentage of women in Pakistan are literate compared to 71% of men? Less than half. next page की तरफ हम बढ़ते हैं। 23 what proportion of women participate in the labor force in Pakistan? 1/4. Number 24 what percentage of men in Pakistan participate in the labor force? 85%. 25 according to the WEF 2020 report what percentage of senior and leadership roles are held by women in Pakistan? 5%. 26 what percentage of Pakistan's labor income goes to women? 18%. 27 what is the key to boosting economic growth and sustainable development in Pakistan? Rising women's participation in the workforce and advancing their financial empowerment. 28 what proportion of victims of intimate partner violence are believed to be women? 2/3. 29 according to WHO World Health Organization what proportion of women in the European regions has been a victim of violence? One in every 5. 30 according to the estimate what percentage of Pakistani women suffer domestic violence? 70% to 90%. 31 according to the survey on 1000 women in Punjab how many women are burned every day in domestic violence cases? 2. Question number 32 nearest meaning heinous, इंतहाई गनावना यानी भयानक, wicked. 33 nearest meaning plague, plug, आफत, वबा यानी मुसीबत, disaster. Why do large number of women or their infants lose their lives during childbirth? Due to non-availability of adequate health facilities and qualified female staff. 35 what does Islam enjoin regarding gender equality? To promote gender equality in all walks of life. 36 nearest meaning pinnacle, उरूज यानी चोटी, पीक को कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में इसका मतलब पीक है।
अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि टोटल 35 डेज़ बाकी है SST जनरल टेस्ट के लिए, यानी 30 जून से 12 जुलाई तक के दरमियान सारे के सारे टेस्ट होने वाले हैं। तो आज से इरादा करें, इस मुसम्मम इरादा, मजबूत इरादा रखें और अपने पढ़ाई पे फोकस रखें और शुरुआत करें। तो देर किस बात का, तो हमारा यूट्यूब चैनल ई टीचर, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं। उसके हवाले से हम आपसे के लिए वीडियो भी बनाएंगे, तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। चलो लेट्स आगे बढ़ते हैं। 37 नियरेस्ट मीनिंग लेटेंट, लेटेंट मीन्स पोशीदा, छुपा हुआ, हिडन। 38 नियरेस्ट मीनिंग अबॉर्ड, मस्कन, रिहाइश, डिवेलिंग। 39 नियरेस्ट मीनिंग कंसिपिक्सली, नुमाया तौर पर, इसका प्रोमिनेंटली, इसका दूसरा मतलब इंग्लिश में क्या है, प्रोमिनेंटली। 40 नियरेस्ट मीनिंग डर, कमी, किल्लत, डियर यानी शॉर्टेज, स्केर्सिटी। 41 नियरेस्ट मीनिंग डिटर्मिनेंटल, नुकसानदेह, मुज़र यानी हार्मफुल, फेटल। 42 नियरेस्ट मीनिंग डिस्पेरिटी, अदम मुसावात, फ़र्क, इनइक्वलिटी। 43 नियरेस्ट मीनिंग इंटीमेट, करीबी, ज़ाती यानी क्लोज। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट पेज है SST जनरल इंग्लिश MCQs क्लास सेकेंड ईयर, एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ब इन ब्रैकेट्स, यूज़ द फर्स्ट कंडीशनल। सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट कंडीशनल को यूज़ करना होगा, ठीक है। इफ़ माई आंट कम्स टू विजिट शी विल गिव, यहाँ पर गिव है तो इनसे फर्स्ट कंडीशनल कैसे बनाएंगे, जब यहाँ पर इफ़ आ जाएगी तो यहाँ पर विल गिव बनाएंगे, ठीक है ना। यानी गिव से हम क्या बनाएंगे, विल गिव, तो ये फर्स्ट कंडीशनल वर्ब है, यूज़ अ प्रेजेंट। नंबर 2, इफ़ इट डजंट रेन वी विल गो टू बीच, यहाँ पर गो है यानी फर्स्ट कंडीशनल वर्ब क्या होगा, विल गो। नंबर 3, इफ़ इट स्नोज, यहाँ पर स्नो है तो ये स्नोज बन जाएगा, यानी टुनाइट वी विल मेक अ स्नो मैन टुमारो। नंबर 4, इफ़ यू डोंट ट्राई यू विल नॉट सक्सीडेड, यहाँ पर नॉट सक्सीडेड है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, विल नॉट सक्सीडेड। नंबर 5, इफ़ यू ब्रिंग, यहाँ पर ब्रिंग ये सेकंड फॉर्म है, द सैंडविचेस फॉर द पिकनिक, आई विल ब्रिंग द ड्रिंक्स। नंबर 6, इफ़ ही टॉक्स टू लॉन्ग हिज पेरेंट्स विल नॉट लेट हिम यूज़ द फोन। नंबर 7, ही विल टर्न ऑन द हीटर इफ़ इट गेट्स से गेट्स बन जाएगा, टू कोल्ड। नंबर 8, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस अनलेस यू रीड यानी रीड द बुक। नंबर 9, इफ़ वी गो टू पेशावर वी विल विजिट गो होगा और विजिट से विल विजिट माई फ्रेंड सलमान। नंबर 10, इफ़ शी डज यानी डू से क्या बन जाएगा, डज बन जाएगा, विल इन द एग्जाम माई सिस्टर विल गो से विल गो टू यूनिवर्सिटी। नंबर 11, नीलम विल नॉट ईट यानी नॉट ईट से विल नॉट ईट सपर, इफ शी ईट से ईट्स बन जाएगा, ऑल द आइसक्रीम। 12, माई ब्रदर विल ड्राइव से विल ड्राइव अस टू द सिनेमा ऑफ इफ वी आस्क हिम। नंबर 13, अंकल इस्माइल विल फोन, ठीक है, अस इफ ही वांट्स टू कम विद अस। सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। नंबर 1, आरिफ विल वाटर द गार्डन इफ ही कम्स विल कम होम, यहाँ पर कौन सा ग्रोस वर्ब होगा, कम्स होगा, ठीक है। नंबर 2, वी विल बाय आवर टिकट्स इफ वी हैव इनफ मनी। नंबर 3, वी विल बी लेट फॉर द शो अनलेस यू हुर्रे। नंबर 4, आई विल टेक, ठीक है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स। नंबर 5, इफ इट इज़, यहाँ पर इज होगा, अ नाइस डे टुमारो वी विल गो फॉर अ बाइक राइड। नंबर 6, ही वॉन्ट क्रॉस द रोड अनलेस ही सीज द ग्रीन लाइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारा यूट्यूब चैनल ई टीचर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।